Hi everybody. Today is 24th 25th of December 2023. Day number 358359. If you want it, work for it. It's that simple. Today we are going to talk about all these important topics in next about 40 to 45 minutes of time. See, be your own cheerleader. You have got this. When your days are intense, the best thing you can do for yourself is to be your best cheerleader. Study full throttle. This is Daily Quiz question number 1. In the context of IUCN Red List of Threatened Species, consider the following species. It evaluates the extinction risk of various species and subspecies. It is limited to animal species and does not include plant species. आपको बताना है इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए बी सी या फिर डी. क्वेश्चन नंबर 2. Which of the following are the methods of ex situ conservation of biodiversity? Seed banks, cryptopreservation, sacred groves, टिश्यू कल्चर प्रोपोगेशन. इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है, टेल ए बी सी या फिर डी. Question number 3. Which of the following biosphere reserves is incorrectly matched with the state in which it is located? Dihang Dibang, Pachmadi, Panna या फिर Nokrek. Question number 4. Recently, the Ministry of Shipping approved the development of Loktak Island, Loktak Inland Waterway Project, Loktak. In light of this, consider the following statements. Loktak Lake is the largest freshwater lake in India. Fumdis are a collection of heterogeneous mass of vegetation, soil and organic matter floating on the lake. Kebul Lamjao National Park, the words only floating national park is located on the lake. So tell इनमें से correct option क्या है. Question number 5. Consider the following tiger reserves. Melghat Tiger Reserve, Mukundra Hills Tiger Reserve, Pilibhit Tiger Reserve, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व. इनको आपको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है. So these are 5 questions for today. You can post your answer in the comment section down below. This is Telegram quiz. Every day we are having 5 such multiple choice questions. Join our Telegram channel and attempt these questions. This is good job. Good job को कहने के बहुत सारे तरीके होते हैं. Appreciation में हमेशा criticism से ज़्यादा पावर होती है. You can say great, you are magnificent, wow, way to go, super, super duper, that's incredible, cool, outstanding, you are doing a great job, what a creative idea, tremendous, fantastic, phenomenal, wonderful. That's it exactly. You are catching on. Now you have got it. You did a lot of work today. Superb. You did it that time. You have got it made. That's better than ever. That's better. You made it look easy. Good efforts. Keep working on it. I'm proud of you and that's really nice. So ये कुछ तरीके हैं good job को बोलने के. दिस इज़ प्रीलिम्स 1 कोर्स. इट्स अ फ्लैगशिप कोर्स. इसमें ये सारे कोर सब्जेक्ट्स आपके टाइम बाउंड मैनर पे डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कवर होंगे. ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड हिस्ट्री. आवर फी इज़ वेरी वेरी नॉमिनल. यू कैन पे वन टाइम ओनली फी ऑफ ₹5555 और ये जितने भी यहाँ पर इनिशिएटिव्स हैं इन सबको आप अवेल कर सकते हैं. दिस इज़ इंडिया. इंडिया के कुछ अभी टेम्पल्स एंड इम्पॉर्टेंट साइट्स न्यूज़ में थे. ये मैपिंग के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये किस राज्य में है, किस एरिया में है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है. जैसे जम्मू एंड कश्मीर में है माँ शारदा देवी टेम्पल. उत्तराखंड में केदारनाथ धाम है, आदि शंकराचार्य जी का स्टैचू है. उत्तर प्रदेश में टेम्पल वाराणसी, श्री राम टेम्पल इन अयोध्या, सारनाथ आर्कियोलॉजिकल साइट और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है. बिहार में विष्णुपद टेम्पल है. मेघालय में उमियम लेक है. इस उमियम लेक की एक स्पेशलिटी है, आप बता सकते हो क्या स्पेशलिटी है उमियम लेक की. अरुणाचल प्रदेश में है परशुराम कुंड. मणिपुर में है श्री गोविंद जी टेम्पल. असम में है माँ कामाख्या टेम्पल. वेस्ट बंगाल में है बिप्लोबी भारत गैलरी. उड़ीसा में है श्री जगन्नाथ धाम. झारखंड में है बिरसा मुंडा ट्राइबल म्यूजियम. अंडमान एंड निकोबार में सेल्युलर जेल है. तेलंगाना में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है. आंध्र प्रदेश में श्री सैलम टेम्पल है. तमिलनाडु में शोर टेम्पल है. केरला में है गुरुवयुर टेम्पल.
कर्नाटका में है श्री चामुंडेश्वरी देवी टेम्पल, महाराष्ट्र में है क्रांति गाथा, छत्रपति शिवाजी महाराज स्टैचू राजकोट फोर्ट, त्र्यंबकेश्वर टेम्पल, पधन पंधारपुर पिलग्रिमेज टाउन भी है। देन मध्य प्रदेश में है उज्जैन महाकाल, स्टैचू ऑफ यूनिटी दांडी मार्च मेमोरियल इज इन गुजरात। दिल्ली में है नेशनल वॉर मेमोरियल, भारत मंडपम, यशोभूमि एंड प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम। पंजाब में जलियांवाला बाग मेमोरियल अभी हाल ही में रेनोवेट हुआ है और करतारपुर साहिब कॉरिडोर भी है। हरियाणा में माता मनसा, नादा साहिब गुरुद्वारा और देवी टेम्पल है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो लोकेशंस हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस मैप को एक बार आप फिर से देखिएगा। नाउ लेट अस कम टू न्यूज़पेपर। आज हम 2 दिन का न्यूज़पेपर कंप्लीट करेंगे। वी विल ट्राई टू बी क्विक। दिस इज द हिंदू, संडे 24th December 2023, and this is 25th of December 2023, that is today, that is Monday. So let us begin. Vessel with 20 Indians on board hit by drone, Navy Coast Guard step in. So अभी जो important sea lanes of communication है, यहाँ रिस्क फैक्टर एसोसिएट हो रहे हैं और ऐसे केसेस आ रहे हैं अटैक्स के भी। सो दैट इज़ वाई हमारी नेवी भी और इवन इंडियन कोस्ट गार्ड भी काफ़ी एक्टिव हो रहा है। सो अभी ये रेड सी का जो क्राइसिस है, ये इंडियन वाटर्स में भी कुछ जगह देखने को मिला। और जो इंडियन वाटर्स है, यहाँ पे अनक्लॉस के अकॉर्डिंग से 200 किलोमीटर नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, EEZ। सो यहाँ ये एक्टिविटी देखने को मिला। इंडियन कोस्ट गार्ड ने इमीडिएटली स्टेप इन किया और इस एक्टिविटी को थ्वाट किया। ICGS विक्रम भी यहाँ पे डिप्लॉय है एंड इंडियन कोस्ट गार्ड एंड इंडियन नेवी दोनों अभी एक्टिव है। ये जितनी भी स्टेट्स हैं, इसका एक बहुत अच्छा PDF है। इसको मैं अभी फिर से अभी शेयर कर रहा हूँ टेलीग्राम पे, हैव अ लुक। जैसे ये ज़मीन है, ये ज़मीन है, बीच में एक नैरो लैंड है जो 2 लैंड मासेस को कंप्लीट ज्वाइन कर रही है, तो इसको बोलते हैं इस्थमस। ये वाटर है, ये वाटर है और एक नैरो वाटर बॉडी कनेक्टिंग टू वाटर बॉडी, सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट। सो ये जितनी भी मेजर स्ट्रेट्स हैं, इन सब का एक बहुत बढ़िया सा कंपाइलेशन है। इसको मैं अभी विद मैप अभी शेयर कर रहा हूँ टेलीग्राम पे। इन सबको आप देखना, फ्लोरिडा स्टेट, हॉर्मज, हडसन स्टेट, गिब्राल्टर, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ताइवान है, बोहाई है। ओके, सो हैव अ लुक एट दिस स्ट्रेट्स मैप। देन दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। टी बोर्ड इश्यूज ऑर्डर टू ग्रोअर्स ऑन पेस्टिसाइड यूज। ये न्यूज़ कल भी आएगा। और द थिंग इज कि जो इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स हम ट्री प्लांटेशन, क्रॉप प्लांटेशन में लगाते हैं, एट टाइम्स ये सीप इन हो जाते हैं प्लांट्स में भी, फ्रूट्स में भी, सीड्स में भी, और फिर वो फूड चेन में आ जाते हैं। हम इनका कंजम्पशन करते हैं और फिर ये हमारे लिए हमारी हेल्थ को डिटीरियोरेट करते हैं। एट टाइम्स ये कार्सिनोजेनिक भी होते हैं। सो इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे किया जाता है फसल को बढ़ाने के लिए, फसल के नुकसान को कम करने के लिए। बट ये इंसेक्टिसाइड के साइड इफेक्ट्स आते हैं इस क्रॉप के कंजम्पशन में। देन दिस इज सीजन ऑफ जॉय, ऑल लिट अप, अ व्यू ऑफ डेकोरेटेड क्रिब है, सेंट जोसेफ चर्च अहेड ऑफ क्रिसमस इन गुवाहाटी। तो ये क्रिसमस की फेस्टिविटीज है। हिटिंग बुल्सआई, बुल्सआई का मतलब क्या होता है? कैन यू आंसर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुल्सआई? 26 of May 2023। इसके अलावा आपको और कोई चीज नजर नहीं आनी चाहिए। हिट द बुल्सआई। ये किन्नौर फार्मर्स हैं इन डिस्ट्रेस एज प्राइसेस प्लंज ऑन हायर आउटपुट पुअर डिमांड। 26 of May 2024 को प्रीलिम्स एग्जाम है। सो ये किन्नौर के फार्मर्स हैं। अब देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज है और इसके कारण इन किन्नौर के जो फ्रूट्स प्रोडक्शन हो रहा है, इसका क्रॉप कम हुआ है, इसका प्रोडक्शन कम हुआ है। सो ये जो किन्नौर होते हैं, ये सिट्रस मैंडरिन फ्रूट इन पंजाब बोला जाता है, बट इस बार प्रोडक्शन इनका काफी कम है। पुअर डिमांड, एबुंडेंट प्रोडक्शन एंड अर्ली प्लकिंग ऑफ द प्रोड्यूस दिस विंटर हैव लोअर। प्रोडक्शन ज्यादा है बट सेल कम है। हायर आउटपुट है, डिमांड कम है, तो प्रोडक्शन इज मोर एंड डिमांड इज लेस। सो इनके पास सरप्लस हो रहा है, सरप्लस। सो ये वरिड है ओवर द ड्रॉप इन किन्नौज प्राइस। तो ड्रॉप प्रोडक्शन का नहीं, ड्रॉप प्राइस का है। प्राइस ड्रॉप हुआ है तो दे आर फीलिंग द हीट। सो ये किन्नौर है और दिस इज प्रोडक्शन पंजाब के इस क्षेत्र में होता है। बेटर प्राइसेस फेच नहीं कर पा रहे हैं, सो प्रोडक्शन एंड सप्लाई का यहाँ पे मिसमैच हो रहा है, डिमांड कम है। अब इसी टाइम के लिए फूड प्रोसेसिंग एक वर्ड होता है। फूड प्रोसेसिंग क्या होता है? जैसे ये किन्नौर के फ्रूट्स हैं, अगर इनकी शेल्फ लाइफ कम है बट इन्हीं से हम जूस बना लें, जैम्स बना लें, जेली बना लें, प्रिजर्व कर लें, हमारे पास कोल्ड स्टोरेज हो,
हम इसको एक्सपोर्ट कर दें, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट चैनल्स हों हमारे, हम इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में बेटर सप्लाई चेन के थ्रू हम इसको ट्रांसपोर्ट कर पाए, तो ये बेटर प्राइस डिस्कवरी ला सकते हैं. सो दैट इज वाई कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग, दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन दिस इज वर्ल्ड न्यूज. 12 टर्किश सोल्जर्स हैं, रशिया है, देन दिस इज सियरा लियोन एंड दिस इज ट्विटर. ईरान है, मेडिटेरेनियन सी को शट डाउन करने की बात है, लेट अस सी. यूक्रेन एंड दिस इज रशिया वॉर. ये है साइंस सेक्शन. साइंस सेक्शन में जो फर्स्ट आर्टिकल है इसमें बात है कि जो रेनडियर होते हैं ये भी शीप और गोट्स की तरह स्लीप वाइल च्यूइंग देयर कड. तो ये जो एक्टिविटी होती है इनको बोलते हैं रूमिनेटिंग. सो जैसे रूमिनेटिंग एनिमल्स होते हैं वैसे ही रेनडियर भी रूमिनेट करते हैं. द लेस टाइम दे स्पेंड इन नॉन रैपिड आई मूवमेंट. हमारी स्लीप के भी स्टेजेस होते हैं, तो ये जो नॉन आरईएम स्टेज होता है स्लीप का, इस टाइम पे रेनडियर्स की ईसीजी रिकॉर्डिंग बताती है कि ब्रेन वेव्स प्रेजेंट ड्यूरिंग नॉन आरईएम स्लीप. तो इस सजेस्ट की रेस्ट के टाइम पर भी जो रेनडियर्स थे वो ऑटो मोड में रूमिनेट कर रहे थे. तो ऐसे उनकी ब्रेन एक्टिविटी को मैप करके हमने इन पे ये फाइंड किया है. अब जो रेनडियर होते हैं ये आर्कटिक में है. आर्कटिक ड्वेलिंग रेनडियर्स डोंट डिस्प्ले सर्काडियन बिहेवियरल रिदम. आर्कटिक में एक और डिफिकल्टी होता है कि 6 मंथ तक सन होता है, 6 मंथ तक कोई सन नहीं होता है, नाइट होता है. तो 6 मंथ इज ऑल डे, 24 आवर्स डे, एंड 6 मंथ ऑल 24 आवर्स नाइट. तो इनमें एट टाइम सर्काडियन रिदम भी प्रेजेंट नहीं होता है. दे टेंड टू बी मोर एक्टिव ड्यूरिंग द डे टाइम ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड ऑटम इक्विनॉक्स व्हेन लाइट डार्क साइकिल्स आर प्रेजेंट. तो ऐसे एनिमल बिहेवियर से वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर इनका इवोल्यूशन साइकिल और स्लीप पैटर्न. सो स्लीपिंग एंड रूमिनेटिंग का बिहेवियर यहाँ पर देखने को मिला है. पोलर बियर फर इंस्पायर्ड फाइबर्स ऑफर थर्मल इंसुलेशन. अब ये पोलर बियर्स भी नॉर्थ में मिलते हैं, आर्कटिक सर्कल में. पोलर बियर बिकॉज एक्सट्रीम कोल्ड है, तो पोलर बियर का जो फर होता है वो उनको एक्सट्रीम कोल्ड से प्रोटेक्ट करता है. तो इनके जो फर हैं, जो नेचर ने इनको इवॉल्व किया है, तो अगर इनके जो फाइबर हैं उसमें थर्मल और मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या है, क्या वो वॉशेबल है, डाएबल है, ड्यूरेबल है, एडवांस टेक्सटाइल में वो यूज़ हो पाएगा या नहीं, थर्मल इंसुलेशन, उनका इंसुलेशन कैसे होगा, एरोजेल्स में वो कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पे अभी स्टडी हो रहा है. Similarly, West Antarctic ice sheet collapse. अब this is Antarctic. Arctic is in north, Antarctic is in south. तो यहाँ पे एक शीट कोलैप्स हुआ है और अगेन ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर राइज है और ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं. माइस लिवर प्लेज अ रोल इन हाउ वैक्सीन हेल्प क्लियर बैक्टीरिया. तो माइस पे हमने स्टडी किया और देखा कैसे जो बैक्टीरियाज होता है, लिवर काइंड ऑफ एक फिल्टर होता है. लिवर बहुत सारे एंजाइम्स भी जनरेट करता है, किडनी फिल्टर होता है. तो द लिवर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन. अब सी, यहाँ पे मेन साइट फॉर इम्यूनिटी वैक्सीन अगेंस्ट बैक्टीरिया में देखा जो ब्लड में आ रहा है. तो द थिंग इज ब्रॉड रेंज ऑफ बैक्टीरियल वैक्सीन हमने माइस पे टेस्ट किया और यहाँ पे देखा पैथोजेंस को कैसे क्लियर आउट किया जा रहा है बॉडी में विद द हेल्प ऑफ माइस. तो कैप्चर एंड किल प्रोसेस यहाँ पर ब्लड में एक्टिवेट होती है. स्लीप रेगुलरिटी, स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्लीप को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करिएगा. आप पढ़ाई करिए बट स्लीप शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड. स्लीप इरेगुलरिटी से डेमेंशिया भी होता है, आपका एफिशिएंसी कम हो जाता है, आप भूलते ज़्यादा हो, आपका प्राइम जो ब्रेन कॉग्निटिव एबिलिटी है वो कम होती है. बिकॉज स्लीप इज मेडिसिन. स्लीप इज द टाइम व्हेन बॉडी रिपेयर इटसेल्फ. बॉडी खुद को रिपेयर करती है, रीजनरेट करती है. तो अगर आप स्लीप प्रॉपर नहीं लोगे तो बॉडी रिपेयर नहीं होगी, बॉडी की सर्विसिंग नहीं होगी, तो बॉडी ऑब्वियसली अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगी. तो दिस इज स्लीप पीसफुल होना चाहिए एंड स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिमिलरली टेक गुड केयर ऑफ योर आईज आर ब्यूटिफुल. आईज की हेल्प से हम ब्यूटिफुल वर्ल्ड को देखते हैं. सो आई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब जिस जनरेशन में हम हैं, डिजिटल कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम करना है, इंटरनेट है, स्क्रीन्स ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली फटीग आई में ज़्यादा होता है. बट यू हैव टू टेक गुड केयर ऑफ योर आईज बिकॉज ब्लाइंडनेस भी बहुत तेज़ी से अभी बढ़ रही है, द राइट टू साइट. तो WHO ने ज्वाइन किया है हैंड, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस में. विजन सेंटर्स है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं जो आई का स्टडी करते हैं और इन्होंने बताया है कि आई में बहुत सारे माइक्रोबायोम्स भी हो सकते हैं. जीनोम एंटायर सेट ऑफ DNA इंस्ट्रक्शंस है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे. बायोम रिफर्स टू स्पीशीज दैट आर प्रेजेंट इन अ लोकेशन.
Ocular microbiome refers to the bacteria, fungi and viruses that are present in the eye. तो ये हेल्दी ऑक्यूलर माइक्रोबायोम एक बैरियर की तरह होता है जो इन्वेजन को आउटकास्ट करता है, इन्वेजन से हमें प्रोटेक्ट करता है। कंजक्टिवाइटिस अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था, काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। सो द थिंग इज़ राइट टू साइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी आंखों का ख्याल रखिए। यूज़ डैम्प, वार्म और कूल हैंडकरचीफ टू मेक योर आईज फील बेटर। प्रोटेक्टिव आई ग्लासेस हो, एक ब्लू आइड फिल्टर ग्लासेस भी आते हैं। इफ़ यू वियर कॉन्टैक्ट लेंस तो उनको क्लियर करिए। कॉन्टैक्ट योर आई डॉक्टर टू हैव हिम हर प्रिस्क्राइब्ड अप्रोप्रिएट लोशंस और पिल्स। तो कॉन्टिन्यूसली 30 मिनट से ज़्यादा स्क्रीन नहीं देखना चाहिए। मेक इट अ हैबिट। मेरे को भी याद दिला दिया करो। 30 मिनट्स के बाद आपको एक ब्रेक लेना चाहिए। थोड़ा आप डिस्टेंस की चीज़ों को देखो और कंटिन्यूसली स्क्रीन आपको नहीं देखना है। ओके। Then this is sleep regularity. How is the UK cracking down on immigration? Immigration. यूनाइटेड किंगडम में बाहर देश से बहुत सारे लोग यूनाइटेड किंगडम आते हैं और फिर वो यूके के ही सिटीजन बन के रह जाते हैं। अफ्रीका से आते हैं, एशिया से आते हैं, यूरोप से आते हैं। तो ये जो इमिग्रेशन हैं कई बार लीगल होते हैं, कई बार इलीगल इमिग्रेशन भी होते हैं। इलीगल इमिग्रेशन इज अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। अब द थिंग इज अगर लीगल इमिग्रेशन भी बहुत ज़्यादा होता है तो एक ऐसा पॉइंट आता है कि वहाँ की जो डोमेस्टिक पॉपुलेशन है वो कम हो जाती है और वो लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स हो जाता है। और कई बार क्या होता है, कल्चरल क्लैशेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है जो मिडिल ईस्ट से है। मिडिल ईस्ट का कल्चर इज़ वेरी डिफरेंट। मिडिल ईस्ट का कल्चर इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। वो पर्सन जब यूनाइटेड किंगडम जाता है, यूनाइटेड किंगडम का कल्चर इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। अब इससे क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और अगर इनमें क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन होता है तो सिविल वॉर जैसी सिचुएशन डेवलप होने लग जाती है। और फिर जो लोकल्स होते हैं दे ऑल्सो, बिकॉज अगर लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं एंड नंबर ऑफ टेकर्स आर मोर, तो कंपटीशन इज गोइंग टू इंक्रीज। सो आजकल जो टेंडेंसी ये आ रही है कि इमिग्रेंट्स जो होते हैं क्या ये एक कंपटीशन थ्रो कर रहे हैं लोकल पॉपुलेशन को। क्या जो इमिग्रेंट्स हैं इनसे जो लोकल कस्टम, ट्रेडिशन, लॉज एट्सेट्रा साइडलाइन होता जा रहा है। क्या जो लोकल पीपल हैं वो उनके राइट्स कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं। तो अभी यूरोप में स्पेशली ये काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ है कि इमिग्रेंट्स, स्पेशली इलीगल इमिग्रेंट्स और इवन जो रिफ्यूजीज़ भी होते हैं, रिफ्यूजी का जो एक्सेप्टेंस का जो कल्चर है ये करेक्ट है या नहीं है, इस पे अभी काफ़ी डिबेट चल रहा है। विल न्यू टेलीकॉम बिल स्ट्रीमलाइन द सेक्टर? यहाँ पे टेलीकॉम बिल की बात है। सी, अब जैसे हम डेली हम इस न्यूज़ को देख रहे हैं, ग्रेजुअली न्यूज़पेपर ऐसे इवॉल्व होता है। अभी हमने टेलीकॉम बिल का एक एफएक्यू देखा। आज के पेपर में संहिता का एक एफएक्यू आया है। तो इस तरीके से न्यूज़पेपर स्टेप बाय स्टेप पढ़ना चाहिए। धीरे धीरे उसमें चीज़ें इवॉल्व होती है। इसको स्टैंड अलोन वीडियो की तरह नहीं कंसिडर करना चाहिए। अब सी, गवर्नमेंट टेलीकॉम बिल ला रही है। जितने भी वायरलेस नेटवर्क और इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं इन सब को एक लॉ के अंदर लाया जा रहा है। उनके लाइसेंसिंग प्रोसीजर को, उनके कंडक्ट को, उनके रेगुलेशन को, उनके डिजिटल राइट्स को एक स्टैंड अलोन बिल जो आ रहा है, टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023, इसको भी पार्लियामेंट ने रिसेंटली पास किया। इससे पहले 3 आर्काइक लॉ थे। टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट ऑफ 1933, द टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1950। इन तीनों को कंसोलिडेट करके कुछ अपडेट्स लाके नया बिल आ रहा है जिसको बोल रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023। तो जितने भी वायरलेस नेटवर्क है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ये पूरी प्रोसेस परमिट की, लाइसेंसिंग की हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो टेलीकम्युनिकेशन में सारे नेटवर्क सर्विसेज आ जाते हैं, स्पेक्ट्रम, मैकेनिज्म, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें पब्लिक सेफ्टी, सिक्योरिटी, इंटरसेप्टिंग ऑफ मैसेज का भी प्रोविज़न है। टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेट कब सस्पेंड करना है, किस एरिया में। कई बार हमारी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। हम डू नॉट डिस्टर्ब चाहते हैं बट कॉन्टीन्यूसली हमें से टेली मार्केटिंग के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, एसएमएस आ रहे हैं। व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसी चीज़ों में भी जो ट्रांसमिशन हो रहा है क्या वो स्टेट सर्वेलेंस तो नहीं है। वायर, रेडियो, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम, बिकॉज अभी वे ऑफ कम्युनिकेशन इवॉल्व हो गया है। पहले टेलीफोन लाइन से कम्युनिकेशन होता था, आजकल ये बहुत सारे डिफरेंट एप्लीकेशंस भी आ गए। इन एप्लीकेशंस को कैसे रेगुलेट करना है, क्या ये इंडियन ओरिजिन एप्लीकेशन है, इनमें यूज़र डेटा कैसे हमें मेंटेन करना है, यूज़र राइट्स कैसे सेफगार्ड करना है, एट्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों के लिए ये अभी लेटेस्ट बिल है, दिस इज टेलीकम्युनिकेशन बिल। अब द थिंग इज, अगर इसमें कुछ पनिशमेंट के भी प्रोविजंस हैं,
कि अगर फर्दर सर्टेन कंडीशंस मेट नहीं हुआ तो क्या फाइन लगेगा। इसमें नेशनल सिक्योरिटी का भी प्रोविज़न है। जब राष्ट्रीय सुरक्षा, डिफेंस, लॉ एनफोर्समेंट, क्राइम प्रिवेंशन, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, डिजास्टर मैनेजमेंट, प्रमोटिंग साइंटिफिक रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन, ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट्स जैसे स्पेस एक्स, भारती एयरटेल का वन वेब, इन सब लेटेस्ट जो प्रोसीजर्स है, लेटेस्ट वेज हैं टेलीकम्युनिकेशन के, ये सारे भी यहाँ पर गवर्नमेंट को फ्रीडम दे रहे हैं और गवर्नमेंट को यहाँ पे रेगुलेशन प्रोवाइड करने पर हेल्प कर रहे हैं। बट कंसर्न्स एक ही हैं कि कंसर्न्स है कि अगर इंटरनेट शटडाउन हो रहा है, सर्वेलेंस हो रहा है, तो क्या इसमें इंटरनेट यूजर के राइट्स कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 19F के अंदर स्टैंडर्ड एंड कॉन्फॉर्मिटी असेसमेंट मेजर्स के अंदर जो डेटा एनक्रिप्टेड होता है, क्या उसको सर्वेलेंस या ट्रेस तो नहीं कर सकती व्हाट्सएप एंड दिस टेलीग्राम एटसेट्रा के मैसेजेस। तो इससे क्या स्टेट स्पॉन्सर्ड सर्विलेंस भी बढ़ेगा, ये कुछ कॉज ऑफ कंसर्न है, बेसिकली प्राइवेसी बेस्ड। तो इंडस्ट्री ने अभी इसको बिल को देखा है, राइट ऑफ वे ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस तो है। लेट अस सी अभी ये किस डायरेक्शन में जाता है। इंडिया मालदीव्स के रिलेशंस अभी थोड़े से डिफिकल्ट फेज में आ रहे हैं। अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ है मालदीव्स में, मोहम्मद मुइजू यहाँ पे नए चीफ बने हैं, और अभी हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो इंडिया कराता था वो शायद रिन्यू नहीं होगा। लेट अस सी। इंटरनेशनल रिलेशंस में ना डायरेक्ट कमेंट्स पास करने से बचना चाहिए, बिकॉज देयर आर वेरियस ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 2.5 डिप्लोमेसी एट वर्क होती है साइमल्टेनियसली। तो आउटराइट स्टेटमेंट्स नहीं देना चाहिए। अभी मालदीव्स के साथ थोड़ी डिफिकल्टीज है, अभी ये रिन्यू होने में भी डिफिकल्टी है। बट अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर साहब का मीटिंग भी हुआ था यहाँ पे, तो ये अभी COP28 UAE में मीटिंग भी हुआ था। लेट अस सी। मालदीव्स की ज्योग्राफी हमें पता है, इट्स लाइक कोरल आइलैंड है, सी लेवल कम है, क्लाइमेट चेंज से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। इंडिया क्लोजेस्ट नेबर है मालदीव्स का, और दैट इज़ वाई इंडिया हमेशा से फर्स्ट रेस्पॉन्डर रहा है। मालदीव्स में कभी भी डिफिकल्टी आती है, इंडिया फर्स्ट रेस्पॉन्डर है, चाहे वाटर सप्लाई हो, डिजास्टर रिलीफ हो, एट्सेट्रा। मीनवाइल मालदीव्स में कुछ इंडियन ट्रूप्स भी पोस्टेड होते थे, जिसपे भी अभी हाल ही में मालदीव्स ने ऑब्जेक्शन उठाया है कि इंडियन ट्रूप्स जो मालदीव्स में पोस्टेड है पॉसिबली उनको विड्रॉ किया जाएगा। यहाँ पे बात है हाइग्रोस्कोपी का। तो द थिंग इज हाइग्रोग्राफिक सर्वे का, और इसमें इंडिया को काफ़ी एक्सपर्ट है। बट लेट अस सी अभी ये मिशन रिन्यू होता है या नहीं होता है, लेट अस सी। देन दिस इज द रेबल हु बिकेम द रूलर, शेख हसीना मैम है, दिस इज बांग्लादेश। अ स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट, अब सी, ये है यमन और ये एरिया है हौदी का। ये गल्फ ऑफ अडन है, ये रेड सी है, और ये स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडप है। जो रेड सी है, गल्फ ऑफ अडन, रेड सी, देन स्वेज कैनाल एंड देन मेडिटेरेनियन, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन। ऑयल और बहुत सारे गुड्स यहाँ से ट्रांसफर होते हैं। और सी पे इन पायरेट्स का, पहले गल्फ ऑफ सोमालिया में भी पायरेट्स थे, और अभी हाउदीज भी यहाँ पर जो सी की शिप्स हैं उन पे ऐसे अटैक्स हो रहे हैं। तो दिस इज अगेन अ वेरी सीरियस मैटर। स्ट्रेट हैज डिसरप्टेड वन ऑफ द बिजिएस्ट ग्लोबल शिपिंग लेन्स। तो लेट अस सी अभी यहाँ पे किस इवेंट, किस डायरेक्शन में ये जाता है। मीनवाइल, एज अ स्टूडेंट ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, आप केवल इधर फोकस करो। जितनी भी स्ट्रेट्स और चैनल्स हैं, इसको अभी मैं एक होमवर्क भी दूंगा आपको कल, इसको सारा आप लिख के एक जगह कंसोलिडेट कर लो, आपका मैपिंग पार्ट भी हो जाएगा और ये भी अभी कंप्लीट हो जाएगा। देन इंडिया $60 बिलियन मैन मेड टेक्सटाइल सेक्टर है। रील्स फ्रॉम चाइनीज इम्पोर्ट्स ग्लट सी, चाइना पे डिपेंडेंसी। देन दिस इज फेडरल रिजर्व्स रेट कट है। देन दिस इज CY24 वाइड बॉडी A350-900 एयरक्राफ्ट्स हैं। दिस इज एयरबस, एक है एयरबस और एक है बोइंग। ये दोनों किस कंट्री के हैं? आंसर एयरबस एंड बोइंग। देन दिस इज सच अ ब्यूटीफुल पिक, दिस इज री इन्वेंटिंग श्रीनगर्स लैंडमार्क्स। तो यहाँ पर श्रीनगर, विंटर्स हैं, श्रीनगर इज वेरी ब्यूटीफुल, मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। हम सबको श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में जाना चाहिए। इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, इंटीग्रेशन होता है, पीपल टू पीपल कनेक्ट बेटर होता है, और हमारी बॉन्डिंग यूनिटी भी बढ़ती है। तो जम्मू एंड कश्मीर बहुत ब्यूटीफुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैसेजेस भी सेंड कर रही है, एवरीबडी विजिट जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर की हॉस्पिटैलिटी, दिस इज जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो दिस इज जम्मू एंड कश्मीर, और यहाँ पे टूरिस्ट एक्टिविटीज हैं। सो सी, दिस इज जम्मू एंड कश्मीर। तो देखो ये डल लेक है, पोलो व्यू है, ये लोकल्स हैं यहाँ पे, पोलो व्यू। दिस इज घंटा घर एंड दिस इज बच्चे हैं यहाँ पे, एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप भी है झेलम रिवर पे।
So this is 24th of December 2023. Now let us cover Monday, December 25th 2023. ये आज का पेपर है. अब सी, यहाँ एक अटैक हुआ. टैंकर विद इंडियन क्रू हिट बाय ड्रोन इन रेड सी. दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर. इंडियन नेवी इसको बहुत केयरफुली अभी ऑब्जर्व कर रही है. लेट अस सी. सो दिस इज ICGS विक्रम escorting this ship in Mumbai on Sunday. तो इंडियन नेवी इज प्रोएक्टिव. Let us see. Then this is Merry Christmas, 25th of December. This is festival time. Silent night, holy night. So devotees यहाँ पे लाइट कर रहे हैं कैंडल क्रिसमस ईव में. ये सैक्रेड हार्ट कैथेड्रल है न्यू दिल्ली में. फोर्थ डोज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन नॉट रिक्वायर्ड, इंसाकॉक के चीफ ने कहा. अभी कोविड का एक वेरिएंट है JN.1 जो सब वेरिएंट है. इसमें फीवर, नेसल डिस्चार्ज, कफ, ओकेशनल डायरिया एंड सीवियर बॉडी एक जैसी कंडीशंस देखने को मिल रही है. टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. फ्लू भी अभी काफ़ी फैल रहा है. सो द थिंग इज प्रिकॉशनरी थर्ड डोज एंड फोर्थ की ज़रूरत नहीं है, बट जो एल्डरली एंड बच्चे हैं उनका थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करना है. WHO कॉल्स फॉर रेजिंग विजिलेंस. स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने सस्पेंड कर दिया है WFI को, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया. सी, स्पोर्ट्स होता है, स्पोर्ट्स को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए. और जितनी भी हमारे यहाँ बॉडी है, इन बॉडी में फ्री एंड फेयर मैनर पे, रेगुलेटेड मैनर पे सारा स्पोर्ट्स एक्टिविटी एंड कंडक्ट वहाँ पर होना चाहिए. तो जैसे ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, ऐसे और भी बहुत सारे फेडरेशन है डिफरेंट स्पोर्ट्स के. इन सारे फेडरेशन, इन सारे स्पोर्टिंग बॉडी, इवन BCCI में भी देर इज अ नीड टू हैव ट्रांसपेरेंट लॉज. देर इज अ नीड टू हैव क्लियर कट पॉलिसीज जिसमें स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स पर्संस एट फ्रंट रहे. तो दिस इज स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और अभी WFI को सस्पेंड कर दिया गया है. देन दिस इज नेक्स्ट वन. द पेस्टिसाइड हैजार्ड ईटिंग अवे द लाइफ एंड हेल्थ ऑफ फार्मर्स इन महाराष्ट्र. तो ये अगेन पेस्टिसाइड के साइड इफेक्ट्स हैं. पेस्टिसाइड से फसल तो ज़्यादा आती है बट वो फसल टॉक्सिक हो जाती है. पेस्टिसाइड्स के कारण जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्रेथलेस और रेस्टलेस लग रहा है, बीमारी हो रही है, सीजर हो रहा है. इसको कई बार बोला जा रहा है ये कीटनाशक वाली फसल होती है, इट इज़ एज इक्विवेलेंट टू पॉइजन. सो डॉक्टर्स ने बताया ये पॉइजनिंग हो रही है, पेस्टिसाइड हो रहा है, स्किन में रैशेज आ रहे हैं. द थिंग इज पेस्टिसाइड पॉइजनिंग हो रही है यवतमल डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में. Untold realities, highlighted cases of death by pesticide poisoning. So this is a very serious matter. That is why government organic farming को भी इतना encourage कर रही है. ये जो pesticides होते हैं ये ecologically भी बहुत disastrous proof होते हैं. Then this is Education Plus and upbeat outlook. 2023 difficult year था, foreign education etc. से related है. Another opportunity, Wrestling Federation of India needs a complete overhaul. All sporting bodies and federation needs a complete overhaul. ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो, किसी भी टाइप का हरासमेंट नहीं होना चाहिए, चाहे वो मेल या फिर फीमेल वहाँ पे प्लेयर हो, या फिर वहाँ पर हम ये भी देखें कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो वहाँ पे. बिकॉज यू नो स्पोर्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिया को अगर स्पोर्ट्स कल्चर बनाना है, हमें स्पोर्ट्स कल्चर जो पहले से बहुत बेहतर हो गया है, हमें ओलंपिक्स और ऐसे बड़े बड़े गेम्स में अच्छे मेडल्स लाने हैं. तो द थिंग इज़ वी नीड टू हैव अ बेटर स्पोर्टिंग कल्चर. Opportune pause है, uncertainty over science congress schedule is a chance to evaluate it. तो अभी ISC का इवेंट होने वाला था बट वो पोस्टपोन हो गया. 109th एडिशन था, ओरिजिनली लखनऊ यूनिवर्सिटी में हो रहा था. तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग. वाई डोंट वी सेलिब्रेट अवर साइंस रिसर्च स्कॉलर, R&D प्रोफेसर्स, या फिर जो इतना ज़्यादा साइंस टेक R&D में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं. दीज आर द पीपल जो ब्रेक थ्रू लाते हैं और हमारी सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाते हैं. साइंस इज द पेनेशिया. सो इस कल्चर ऑफ साइंस को बढ़ाना है, हमें इन्हें एनकरेज करना है, इनको फैसिलिटेट भी करना है. दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड. इंडियाज जॉब्स क्राइसिस द मैक्रो इकोनॉमिक रीजन. रेगुलर आर्टिकल है इसमें और वो आर्टिकल बोलता है जिससे एक है मैक्रो, एक है माइक्रो. मैक्रो मतलब इंडिया बड़े लेवल पे हम देख रहे हैं, माइक्रो मतलब इंडिविजुअल लेवल पे देख रहे हैं. तो एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, GDP, ये सब मैक्रो कहलाता है. इंडिया का GDP नंबर तो अच्छा है बट क्या हम जॉबलेस ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं? कि नंबर तो आ रहा है, GDP 6% से ग्रोथ हो रही है, बट क्या उसके इक्विवेलेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है? क्या उसकी इक्विवेलेंट जॉब्स जनरेट हो रहे हैं? क्या ये जो जॉब्स हैं इनमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों है?
Quantity required because we have a huge population. Quality is also required. If a person is MSc in physics, तो उसको उस level का job चाहिए. Entrepreneurship cannot be the answer. So the thing is कि we need quality and quantity both. तो मैक्रो इकोनॉमिक रीजंस में जैसे यहाँ एक टर्म दिया हुआ है, कैल्डर वर्डोम कोएफिशिएंट, labor productivity growth rates respond to output growth rate is reflected by this coefficient. तो रीसेंट पेपर ये बताता है इंडिया की नॉन एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है इसमें हायर एवरेज है कैल्डोर वर्डून कोएफिशिएंट का और कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्री. तो द थिंग इज जॉबलेस ग्रोथ इज द बिग थिंग. एग्रीकल्चर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है, तो कहने को सब एम्प्लॉयड है बट देयर प्रोडक्टिविटी इज जीरो. 10 में से 5 लोग भी हटा दोगे तब भी वो प्रॉपरली वर्क करेगा. तो दैट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. तो ये ऑफिशियल डेटा है. लो लेबर डिमांड भी है हमारे यहाँ, वेज एम्प्लॉयमेंट काफ़ी कम है. और दूसरा अब एक आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. जैसे अभी कुछ फर्म्स हैं जिन्होंने एआई के कारण काफ़ी सारे अभी जॉब लॉसेस भी हुए हैं. सो द थिंग इज लेबर डिमांड एंड फॉर्मल नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में दो डिस्टिंक्ट फैक्टर है. हमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मल सेक्टर का वर्कर चाहिए, इनफॉर्मल नहीं. और टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लेबर डिमांड फॉर्मल सेक्टर में भी बढ़ेगा. लेबर डिमांड डिपेंड करेगा कि कितनी टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी से हम कितने नए जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं. देखिए जॉब तो जाएंगे, जो ओल्डर जॉब्स हैं वो अब इरेलेवेंट हो जाएंगे. बट द थिंग इज सिमिलरली अगर 100 जॉब्स ऑब्सोलीट होते हैं तो हमें 1000 नए जॉब्स क्रिएट करने हैं. देन ओनली फिर हम राइजिंग पॉपुलेशन को अकोमोडेट कर पाएंगे. वरना जॉबलेस ग्रोथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. हमारे पास जीडीपी अच्छा है, हमारे पास यंग पॉपुलेशन है, बट अगर इस यंग पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग बर्डन. डेमोग्राफिक डिविडेंड एक डेमोग्राफिक बर्डन में कन्वर्ट हो सकता है. इवॉल्विंग रोल ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है जिसमें स्पेशली सीज में जो सिक्योरिटी एंड इनिशिएटिव्स है उसको बड़े अच्छे से कंपाइल किया है. ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है. जैसे अभी रेड सी में भी हम देख रहे हैं सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो समुद्रों को सुरक्षित, सेफ, सिक्योर और स्टेबल करना इंडियन ओशन को इज अवर प्रायोरिटी. इसमें मेंबर स्टेट्स में मॉरिशस, श्रीलंका भी थे. ऑब्जर्वर स्टेट में बांग्लादेश एंड सीशेल्स भी थे. मालदीव्स अंडर न्यू डिस्पेंसेशन ओनली मेंबर स्टेट जो एब्सेंट था. तो मालदीव्स के कारण मालदीव्स से हमें थोड़े डिफिकल्ट सिग्नल्स अभी देखने को मिल रहे हैं. और उसका भी रीज़न है, आगे हम चाइना फैक्टर देखते हैं. सो द थिंग इज कि ये ऑर्गेनाइजेशन 2011 में आया था कोलंबो. श्रीलंका जॉइनिंग इंडिया एंड द मालदीव्स फॉर ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी में. 2014 में जब इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस अगेन नोज डाइव हुए थे बिकॉज ऑफ सी कंट्री, तब भी इसमें थोड़ा हॉल्ट आया. बट 2020 में फिर से नॉर्मलसी आ रही थी. मॉरिशस, सीशेल्स एंड बांग्लादेश भी इसमें इंक्लूड हो रहे थे. फिर इसके अलावा स्ट्रैटेजिक विजन था इंडियन दिस ओशन का. रीजनल जो हमें सेफ्टी सिक्योरिटी है वो पैरामाउंट हमने रखा. द थिंग इज आइलैंड नेशंस के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं बिकॉज वहाँ पे ज़मीन ऑब्वियसली कम होती है और प्लस सी लेवल इज ऑल्सो राइजिंग. और समुद्र है तो वहाँ पे क्लाइमेट डिजास्टर्स भी ज़्यादा होते हैं. सो द थिंग इज इफ इंडिया इज देयर तो ऑब्वियसली रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में हम इमर्जिंग थ्रेट से बेटर वे में इसको डिक्टेट कर सकते हैं. बट यहाँ एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी आती है, वो होती है चाइना. चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है. चाइना पाइप्ड ड्रीम्स दिखाता है, खूब सारा इन्वेस्टमेंट करता है कंट्रीज में, जो लोन एटसेट्रा एट टाइम्स फॉल्ट भी हो जाता है, डिफॉल्ट होता है. फिर चाइना बिकॉज ऑफ लोन डिफॉल्ट उनके स्ट्रैटेजिक पोर्ट्स को कैप्चर कर रहा है. तो दिस इज द थिंग. चाइना स्ट्रेंथन कर रहा है नेवल कैपेबिलिटी और इंडिया के जो नेबर्स हैं वो भी चाइना अपने तरफ उनको ज़्यादा इंक्लाइन करने की कोशिश करता है. एक थ्योरी भी होती है, वो होती है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी. स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जैसे लंका का हम्बन टोटा हुआ, सितवे पोर्ट हुआ, दिस पाकिस्तान का पोर्ट हुआ. सो द थिंग इज दिस इज द थिंग. अब इंडिया को ऑब्वियसली चाइना से केयरफुल रहना है. सीएससी के 5 पिलर हैं: मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, काउंटरिंग टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन. दिस इज ऑल्सो वन थिंग. इंटरनेट के थ्रू लोगों को रेडिकलाइज किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है. तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है, टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन. एक्सट्रीम बिहेवियर ज़्यादा देखने को मिल रहा है, एग्रेशन एंड दिस वायलेंस ज़्यादा देखने को मिल रहा है. ट्रैफिकिंग एंड ट्रांसनेशनल क्राइम है, साइबर सिक्योरिटी है, प्रोटेक्टिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एक पॉइंट है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ इज ऑल्सो वन पॉइंट. तो ये 5 पिलर है कोलंबो सिक्योरिटी डायलॉग के.
2021 में भी था टेरर और टेरर फाइनेंसिंग, नार्कोटिक्स, ट्रैफिक, साइबर क्राइम, सिक्योरिटी, मरीन पॉल्यूशन, मैरीटाइम लॉ एंड कोस्टल सिक्योरिटी पे हमने एम्फेसिस दिया। सो ओशनोग्राफर एंड हाइड्रोग्राफर्स भी हमने बुलाए। अभी 2024 में भी जॉइंट वर्किंग ग्रुप वर्क कर रहा है। टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, ह्यूमैनिटेरियन एड, डिजास्टर रिलीफ, इसे HADR बोलते हैं। ट्रैफिकिंग एंड ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में है। काउंटर टेररिज्म, पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट, साइबर सिक्योरिटी, बहुत हाई यील्डिंग कीवर्ड्स हैं, टिप्स में याद होने चाहिए। पर यहाँ मालदीव्स एब्सेंस है और उसमें ऑब्वियसली चाइना फैक्टर भी है, तो ये एक थोड़ा डिफिकल्ट रोड है। लेट अस सी। देन अनपैकिंग द फर्स्ट एवर कॉप हेल्थ डे। हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जान है तो जहान है। देन व्हाट वाज गूगल्ड इन दिस, इंडिया रिवाइज्ड क्रिमिनल लॉ प्रपोजल्स। अब इसमें भी बहुत निटी ग्रिटी में हम नहीं जाते हैं, ये एक फाइनल, एक बहुत अच्छा हम कंपाइलेशन देखेंगे इसका कुछ ही दिनों में। फिर जितने भी ये 3 एक्ट्स हैं, जैसे ये 3 एक्ट्स हैं, आईपीसी का रिप्लेस हुआ भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी रिप्लेस हुआ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ भारतीय साक्ष्य बिल। तो ये 3 नए बिल हैं जो पुराने 3 एक्ट्स को, कॉलोनियल आर्काइव को हटाते हैं। अब इसमें प्राइमरली अगर देखें तो 2-3 बड़ी बातें हैं। पहला, टेररिज्म अलग से डिफाइन करने की बात है। जैसे सेक्शन 15 है यूएपीए का, तो यूएपीए एट टाइम्स ड्रैकोनियन भी बोला जाता है। तो व्हाट इज टेररिज्म? टेररिज्म की डेफिनेशन क्या है? तो विद इंटेंट टू थ्रेटन टू लाइक यूनिटी, इंटीग्रिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, तो वो टेररिज्म के अंदर कौन सी सारी एक्टिविटीज आएगी? टेररिज्म बहुत वेगली भी डिफाइन नहीं होना चाहिए, क्लियर कट डेफिनेशन होना जरूरी है, बिकॉज कोई भी लॉ अगर वेग होता है तो उसका मिसयूज ज्यादा होता है। सो द थिंग इज यूएपीए के बात है। फिर इसके बाद इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स इन्होंने रिक्रूट किए, जैसे डोंट बी अ पार्टी ऑफ टेररिज्म। अगर आप हार्बर भी कर रहे हो टेररिस्ट को, तो यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट क्राइम। क्रुएलिटी डिफाइन किया है, व्हाट इज क्रुएलिटी, और मैरिज में क्या क्रुएलिटी है, इन सबको भी यहाँ पे डिफाइन करने की बात की है, हैरेसमेंट एटसेट्रा। सो ये अभी डिटेल में हम देखेंगे। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कुछ बोला है यहाँ पर, देन सेक्शन 377 पे है, कुछ रिकमेंडेशंस इग्नोर नहीं हुई है। पेटी क्राइम्स क्या होते हैं, जो नॉन सीरियस टाइप के क्राइम्स होते हैं, मतलब दे आर ऑल्सो क्राइम, बट जैसे स्नैचिंग है, चीटिंग टिकट्स है, गैम्बलिंग है, बेटिंग है। तो यू नीड टू कैटेगराइज कि कौन से टाइप के वो क्राइम्स हैं। तो ये क्राइम्स है। ऐसे करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी है, जिसमें पेनल्टी भी लग सकती है। पुलिस को क्या पावर है, अरेस्ट का क्या पावर है, कोर्ट को क्या है, ऑडियो विजुअल क्या, टेक्नोलॉजी ड्रिवन ये जो ऑडियो विजुअल सोर्सेज हैं, ये एज अ लॉ, एज अ एविडेंस माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो ये अभी बहुत डिटेल में बात चल रही है इसमें। अगेन लेट अस वेट फॉर अ कपल ऑफ डे, इस पे हमने एक शॉर्ट नोट बनाया था, इसका आपको बहुत अच्छा पीडीएफ एंड इन्फोग्राफिक भी अभी शेयर करूंगा। Then why ransomware attacks on Indian IT firms are cause of concern? Ransomware, फिरौती, they are not on the same wavelength, मतलब सेम सिंक नहीं हो रहा है, थॉट प्रोसेस सिंक नहीं हो रहा है वहाँ पे। बिजकेशन मतलब बिजनेस भी है, वेकेशन भी है, तो ऐसे शॉर्ट कर दिया है वर्ड को, स्टेकेशन भी हो सकता है। देन राय का मतलब होता है ह्यूमरसली सरकास्टिक और मॉकिंग, आयरॉनिक, विटी। टेकिंग सेंटर स्टेज है, दिस इज यहाँ पर हो रहा है, कुडुम्बश्री यूनिट्स हैं केरला में, और दिस इज फोक थिएटर आर्ट यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। देन दिस इज नेक्स्ट वन, ये है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का विजिट है रशिया 25 टू 28। देन टैक्स कट्स ऑन शुगर एक्सपोर्ट्स को रिवाइव करने की बात है। कोविड-19 सर्विलेंस इज इम्पॉर्टेंट। गाजा, देन दिस इज इलेक्शन, यूएन कॉल्स फॉर रोहिंग्या ड्रिफ्ट इन ओशन ड्रिफ्ट। अब देखो ये जो रिफ्यूजी क्राइसिस है, रिफ्यूजी क्राइसिस में जैसे अभी गाजा में रिफ्यूजी क्राइसिस है, तो क्या इन सब रिफ्यूजीज को इजिप्ट में सेटल कर दिया जाए, सऊदी में सेटल कर दिया जाए, यूएई में सेटल कर दिया जाए, यमन में सेटल कर दिया जाए, यूएसए में सेटल कर दिया जाए, यूरोपियन कंट्रीज में सेटल कर दिया जाए, तो क्या ये एक सॉल्यूशन होगा? विल दैट बी अ सॉल्यूशन? नो। द सॉल्यूशन शुड बी कि जहां रिफ्यूजी क्राइसिस जेनेसिस है, जहां प्रॉब्लम हुई है, उस सोर्स को करेक्ट करो। बिकॉज यू नो वर्ल्ड की पॉपुलेशन ऑब्वियसली इट्स ऑन द राइज। अगर आप सारे रिफ्यूजीज को सऊदी में पुट कर दोगे तो सऊदी विल नॉट, इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट। इवन इजिप्ट ने भी मना कर दिया है रिफ्यूजीज और माइग्रेंट्स को एक्सेप्ट करने से। और द रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज इजिप्ट के रिसोर्सेज भी बहुत लिमिटेड हैं। तो द लोकल्स एट टाइम्स स्टार्ट फीलिंग कंपटीशन, अगर बहुत सारे रिफ्यूजीज और माइग्रेंट्स वहां पर आ जाएंगे तो। सिमिलरली जो यूरोप का भी डिफिकल्टी है वो यही है, सीरियन वॉर, अफगान वॉर, इराक वॉर,
देन आइसिस क्राइसिस, इसके बाद ह्यूज एक्सोडस ऑफ रिफ्यूजीज आए और वो पूरे यूरोप और अमेरिका कनाडा इधर सेटल हो गए। अब डिफिकल्टी इज कि कैसे दो डिफरेंट कल्चर्स को मिक्स किया जाए। रिसोर्सेज इकोनॉमी ऑब्वियसली यूरोप और यूएसए की भी स्लो डाउन पाथ पे है, तो इससे डिफिकल्टीज आ रही है, फ्रिक्शंस आ रहे हैं। तो ये सिमिलरली यहाँ पर भी है। अब ये इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं तो कंट्री की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस को स्ट्रांग होना जरूरी है कि वो रिफ्यूजी क्राइसिस होने ही नहीं दे। जहाँ सोर्स है उस सोर्स को करेक्ट करें हम। दिस इज द थिंग। देन mitigating pollution, and yeah, this is historic first test win over Australia. Indian cricket women team playing awesome cricket. देन दिस इज नेक्स्ट वन, ये है कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट प्रॉब्लम। फिजिक्स का एक बिगेस्ट क्राइसिस है कॉस्मोलॉजी। व्हाट इज कॉस्मोलॉजी? आंसर कॉस्मोस, दिस यूनिवर्स, कॉस्मोलॉजी। तो स्पेस, जैसे आइंस्टाइन ने बताया था, नथिंगनेस है, बेंडेबल स्ट्रेटेजेबल मीडियम दैट वी ऑक्यूपाई, जैसे वाटर इज फॉर फिश। तो उसी में डार्क एनर्जी, ऐसे हमने नया यहाँ पर एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट ढूंढा है 122 डेसिमल प्लेसेस में। दिस रियली इज द हार्ट ऑफ प्रॉब्लम। ये है नेमेटोसिस्ट, अ सेलुलर वेपन। और ये है बिग शॉट, एलिफेंट स्विमिंग पूल में। ये नॉर्दर्न जिम्बाब्वे में वांगे नेशनल पार्क है, एलिफेंट्स। ओके, सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर। अभी कल से हम रेगुलर रहेंगे, एवरीडे बेसिस पे न्यूज़पेपर। ऑलरेडी हमारे 358 डेज हो गए हैं। 365 डेज होते हैं, 359, वन मोर वीक इज लेफ्ट। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।